پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جمع کرانے کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی الیکشن سیل انچارج سینٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب مختار۔ شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے۔ مرکزی الیکشن سیل انچارج سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے یہ خط چیف الیکشن کمشنر کو لکھا گیا ہے، جس میں امیدواروں کے ٹکٹ جمع کرانے کے وقت میں توسیع کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ امیدواروں کو آرओز کے پاس ٹکٹ جمع کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امیدواروں کو ٹکٹ جمع کرانے کے لیے دیا گیا وقت جو ہے ناکافی ہے، یہ کافی کم وقت ہے۔ ٹکٹ جمع کرانے کا وقت جو ہے مزید بڑھایا جائے تاکہ امیدوار اپنے ٹکٹ جو ہے مختلف حلقوں سے جمع کرا سکیں۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام ریٹرننگ افسران کو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ہدایت بھی جاری کرے۔ امیدواروں کے دستبردار ہونے کا دن تھا، تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے امیدواروں کے دستبردار ہونے کے وقت میں توسیع کر دی گئی تھی۔ مختلف جماعتوں کے امیدوار جو ہے رات 9 بجے تک اپنے ایک دوسرے کے حق میں جو ہے دستبردار ہوئے تھے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ وقت کتنا دیا گیا تھا اور کتنا وقت مزید درکار ہے جس کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے؟ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے احکامات کے مطابق آج شام 5 بجے تک جو ہے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اپنے ٹکٹ جو ہے وہ آرओز کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ خط چیف الیکشن کمشنر کو لکھا گیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے ٹکٹ جمع کرانے کے وقت میں توسیع کر دی جائے گی اور باقاعدہ طور پر امیدواروں کے ٹکٹ بڑھانے کا وقت جو ہے بڑھا دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب۔ عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان پر غور و فکر جاری ہے۔ کراچی پولیس کو 1,04,300 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ اس پر بات کریں گے، شاہزیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں انتخابات کے حوالے سے انہوں نے فل پروف سیکورٹی انتظامات کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی ہے۔ الیکشن سیکورٹی پلان کے لیے 46,076 پولیس اہلکار درکار ہے، جبکہ کراچی پولیس کے پاس اس وقت 31,776 دستیاب ہیں، جس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو 14,300 اہلکاروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ خاص طور پر کراچی کے لیڈیز پولنگ اسٹیشن کے سیکورٹی کے لیے مطلوبہ تعداد خواتین پولیس اہلکار بھی جو ہے دستیاب نہیں ہے۔ خادم حسین رند نے کراچی میں پولیس ڈپلائمنٹ کا سیکورٹی پلان شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر حفاظتی انتظامات کے لیے کم سے کم 3200 لیڈیز اہلکار درکار ہے، جبکہ ان کے پاس 1200 لیڈیز اہلکاروں کی نفری موجود ہے۔ اور جبکہ اگر بات کی جائے کراچی پولیس آفس کو 2000 لیڈیز اہلکاروں کی کمی کا اس وقت سامنے ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مطابق سیکورٹی پلان کے تحت کراچی کے حساس ترین پولنگ اسٹیشن پر 8 حساس پر 6 اور نارمل کے لیے 4 پولیس اہلکار درکار ہے، جبکہ شہر میں 2033 حساس ترین، 3008 حساس اور 308 پولیس اسٹیشن جو ہے حساس ترین 308 جو ہے پولنگ اسٹیشن نارمل قرار دیے گئے۔ اس حساب سے حساس ترین کے لیے دیکھا جائے تو 16,264 اور اسی طریقے سے حساس پر 18,048 اور نارمل کے لیے 1232 اہلکار درکار ہے۔ خادم حسین رند نے مزید بتایا کہ کراچی NA-237 اختر کالونی کے رہائشی گیس کی عدم فراہمی سے پریشان ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 6 ماہ سے گیس کا مسئلہ برقرار ہے، مسائل حل ہونے تک ووٹ نہیں دیں گے۔ صبا پرویز کی رپورٹ ہے۔ کئی علاقے بنیادی سہولیات سے محروم، کب ہوں گے مسائل حل کچھ معلوم نہیں۔ حلقہ NA-233 کے علاقے اختر کالونی میں گیس کی بندش کے باعث علاقہ مکین اذیت کا شکار، ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور۔ علاقہ مکین کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، مسائل حل کیے جائیں ورنہ ووٹ نہیں دیں گے۔ بچے پالے یا بل بھرے، گیس آتی نہیں ہے تو بل اتنے آتے ہیں، 700-800 روپے ہمارا بل آ جاتا ہے۔ خالی کیا ہے، ایک ہنڈی بنیں گی، ایک چائے بنیں گی، روٹی ہم تندور سے لگواتے ہیں
तो फिर भी हमारा बिल नहीं आता, अभी आप चेक कर लें। क्या करें अभी, ये कभी लकड़ी जलाते, कभी गैस पे रोटी बनाते, बस यही हालत। अब देखो किसको देते हैं किसको नहीं, जब हमारे मसले हल होंगे फिर ही देंगे ना, वैसे थोड़ी देंगे। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। काम शेख के साथ सबा परवेज, सिटी 21। एलपीजी माफिया ने गैस की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में 40 रुपए किलो इजाफा कर दिया। फी किलो गैस 300 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी। सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी गई हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। एलपीजी गैस माफिया ने गैस का मसनूई बहरान पैदा में इजाफा कर दिया है। फ़ी किलो तकरीबन 40 रुपये तक का इजाफा किया गया है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एलपीजी सिलेंडर हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। फ़ी किलो गैस जो है तकरीबन 280 रुपये और कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कितना फ़ी किलो इजाफा हुआ है और किस हिसाब से आप गैस बेच रहे हैं और क्या वजूहत है। अभी इजाफा ये हुआ है 12,150 का 50 का सिलेंडर बन रहा है हमारा, ठीक है, 45 किलो गैस। इसके आगे हमारे को जो अब कंपनी आगे बोलेगी तो हम कंपनी से रेट बढ़ा के देंगे, तो ऐसे नहीं देंगे। अभी क्या हिसाब बेच रहे हैं आप गैस? हम ये बेच रहे हैं 280 रुपये बेच रहे हैं किलो गैस। और कितना इजाफा हुआ है गैस पे फ़ी किलो पर? फ़ी किलो पे 40 रुपये का हुआ है, 40 रुपये का इजाफा हुआ। कहना है कि 40 रुपये तक का इजाफा हुआ है और 280 रुपये किलो के हिसाब से ये बेच रहे हैं। और इसके साथ साथ ओगरा की जानिब से खातिर ख्वाह कोई भी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही मुनाफाखोरों के खिलाफ, और मुनाफाखोरों ने जो है गैस की कीमतों में इजाफा किया है। बिलखुसूस मौसम सर्द होते के साथ ही गैस का बहरान भी जो है बढ़ गया है। एलपीजी लोग इस्तेमाल करते हैं, ताहम गैस की मसनूई जो किल्लत पैदा करके मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मसाइल पर बात करें तो लियारी नयाबाद का इलाका मसाइल का घर बन गया है। शहरी पानी, बिजली और गैस से महरूम है। इलाका मकीन कहते हैं वोट उसी को देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। NA 239 के मसाइल के बारे में तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा बताइए। बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। एक जानिब इलेक्शन की कहमा कहमी है तो दूसरी जानिब आवाम के मसाइल जो है वो इस वक्त जू के तू हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का 239 में। यहाँ पे जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 3,85,985 वोटर्स की यहाँ पे कुल तादाद है। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे इलाका मकीन यहाँ के महरूम है। इलाके की खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा कितना वक्त हो गया गैस नहीं आया? वक्त 1 साल हो गया, गैस नहीं है हमारा, बिल्कुल चला गया। हम 400 का रोज सिलेंडर भराते हैं, बच्चों को रोटी दे या सिलेंडर भराएं और बच्चों की फीसें भरें। बत्तियां नहीं है, पानी नहीं है, गटरें भरी हुई है, कहाँ जाएं हम? आप क्या कहेंगी? इलेक्शन होने वाले, पहले इलेक्शन में जो जीते थे क्या उन्होंने आपके मसाइल हल किए? कोई कुछ भी नहीं किया है। और देते हैं हम, लूट के चले जाते हैं, न बच्चों की फीस भर सकते हैं। गैस नहीं आ रहा है, बिल क्यों आ रहा है? 650-700 बिल आ रहा है, सिलेंडर चलाते हैं हम। इलेक्शन का दौर होता है तो सामने आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। जब जीत के चले जाते हैं तो 5 साल फिर आवाम उनका इंतजार करती रहती है कि कहाँ गई है। फिर ये लोग वोट लेके जीत कर असम्बलियों में चले जाते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल के लिए आवाम के पास वापस नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना लियारी नयाबाद हल्का 239 के इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि इस बार जो हमारे मसाइल हल करेगा उसी को हम जो है वो वोट देंगे। इस इलाके में गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो गैस का बहरान जारी है, जिसके बायस इलाका मकीन जो है वो सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर है। इनका यही कहना है कि खासी मुश्किलात होती है जब हम सिलेंडर लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि इस बार जो हमारे मसाइल हल करेगा है वो उसी को देंगे। जी मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए कराची समेत सिंध भर में अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 72 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून सिंध में मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर GDA, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमीयत उलमा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। ताहा मलिक की रिपोर्ट। पंजाब का शेर सिंध में दहाड़ने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में कौमी असम्बली की 24 नशस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कराची के लिए पार्टी के 18 नुमाइंदे सामने आ गए। सिंध असम्बली के लिए 48 पार्टी उम्मीदवार मैदान मारने के लिए तैयार। कराची में सूबाई असम्बली के लिए 35 और अंदरून सिंध से 13 रहनुमा चुन लिए गए। मुस्लिम लीग नून जिला मलीर की 2 नशस्तों पर इंतखाबात में उतरेगी। NA 229 से कादर बख्श कलमती और NA 231 से जमील अहमद नामजद।
लीग नून जिला कोरंगी की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। एक नशिस्त पर अपनी इत्तेहादी जमात JUP की हिमायत करेगी। NA 233 से जैन अंसारी और NA 234 से सलीम जिया, जबकि NA 232 से JUP के OS नूरानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुंतखब। जिला शर्की की 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून हिस्सा लेगी। NA 235 शराफत आगा खेल, NA 236 परवीन बशीर और NA 238 से सिदरतुल मुंतहा नून लीग के उम्मीदवार नामजद। जिला जनूबी की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून किस्मत आजमाने को तैयार। NA 240 से सकीना अनवर और NA 241 से रोजीना अनवर हिस्सा लेंगी। जिला किबाड़ी की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून मैदान में उतरेगी। NA 242 से ख्वाजा शुएब और NA 243 से अख्तर जदून मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नामजद। जिला गरबी की 2 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार मैदान मारने को तैयार। NA 244 से गुलाम रसूल शाह और NA 246 से मोहम्मद सलीम को नून लीग का टिकट जारी। जिला वस्ती की 3 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। NA 247 से नाहिदा परवीन, NA 249 से अनसब फातिमा और NA 250 से फुरकान अली उम्मीदवार होंगे। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। सिंध असम्बली के हल्का PS 61 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार शर्जील इनाम मेमन के मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी के 8 मुतवक्के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन दस्तबरदार हो गया है? जी बिल्कुल, ये सिंध असेंबली का हल्का PS 61 हैदराबाद है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार शर्जील इनाम मेमन जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलाआत का काम कर रहे हैं, उनके मद्द मुकाबले 8 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसमें GDA रहनुमा अयाज लतीफ़ फलजी के साहबजादे साहिर अयाज फलजी दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि शर्जील इनाम मेमन के माजी में हरीफ रहने वाले खावन बख्श जहीजो, शेर मोहम्मद सालपुर, सैयद पीर शहबाज हुसैन शाह, सोहेल खान, मोहम्मद कामरान और इफ्तिखार अहमद भी दस्तबरदार हो चुके हैं। इस वक्त जो है शर्जील इनाम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से PS 61 हैदराबाद पर नामजद उम्मीदवार हैं, जिनको पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है। उसके मद्दे मुकाबले ये 8 उम्मीदवार से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस वसूल कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DIRPIS की एडिशनल डायरेक्टर की जानिब से रिमांड लेटर जारी। लेटर में क्या लिखा गया है, बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एडिशनल डायरेक्टर रफिया जावेद की जानिब से तमाम प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर को रिमांड लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में जारी करदा सर्कुलर का हवाला देते हुए सिंध प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोल 12 के तहत प्रिंस टीचर एसोसिएशन PTA के कायम करने की हिदायत दी गई है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 13 के तहत मुस्तहिक बच्चों को फीस कंसेशन की स्कॉलरशिप फराहम की जाए। मतलूबा मालूमात अभी भी बेशतर स्कूलों की जानिब से नहीं जमा कराई गई हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल को ये तंबीह हिदायत की जाती है कि अब अपने मुतालिका स्कूलों में प्रिंस टीचर एसोसिएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस में जूनियर टीम के असिस्टेंट कोच मोहम्मद अली क्या कहते हैं, बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद। जी देखिए, हॉकी की अगर बात की जाए तो हॉकी का रुझान हमने देखा है कि अब मज़ीद जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है हॉकी के मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। हमने ये देखा कि हमारी टीम ने शुरू के मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, बाद में जो है वो कुछ मैचेस बराबर हुए और कुछ में शिकस्त का भी सामना रहा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल जूनियर हॉकी टीम के असिस्टेंट कोच मोहम्मद अली भाई, जो कि काफ़ी जो है इनकी खिदमात है पाकिस्तान हॉकी टीम्स के लिए, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि लड़कों में इतना पोटेंशियल्स है, इतनी स्किल है कि मैं आपको हल्फिया कह के बोल सकता हूँ कि हमारी टीम में अगर हमें प्लेयरों को इंसेंटिव मिले, हमारे प्लेयरों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो मैं समझता हूँ कि हम खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान टीम का सवाल है, इसमें देखें अभी जो क्वालिफाई राउंड के लिए गए हैं उसमें हमारे सीनियर लड़कों को भी ऐड किया गया है, जिसपे शकील अहमद भट्ट है वो पाकिस्तान कप्तान है, और अबू बकर है जो वाइस कैप्टन है, और अब्दुल रज़ाक है। और मैं समझता हूँ ये कम्बिनेशन सीनियर जूनियर बनने का बहुत अच्छा इक़दाम होगा, और ये मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये कम्बिनेशन रहे और ओलंपिक्स तक भी ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो हमारे जो फाइनल ओलंपिक्स राउंड है उस पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं प्लेयर्स। और ये बच्चे जब तक नीचे सदा से नहीं आएंगे और फिर उनको
हम गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी और मल्टी नेशनल सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चों को आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, बच्चे कैसे खेलने आएंगे। जब तक लड़कों को कोई इंसेंटिव मिलेगा तो बच्चे आएंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ होना चाहिए, ग्रास रूट में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट, इंटर यूनिवर्सिटी, उसके पार फिर ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लब्स हैं, उनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो हॉकी को सर्वाइव करें, जब भी हम ऊपर आ सकते हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भाई, जिनकी पाकिस्तान हॉकी के लिए काफ़ी खिदमात है। इनका ये कहना है कि जो ग्रास रूट लेवल ही है जो कि बच्चों को ऊपर लेकर आती है, हॉकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेज में हॉकी इसी तरह जारी रहेगी तो यही बच्चे जो है आगे जाके फिर जूनियर और फिर जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में आकर अपने आप को अपना जो है नाम बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हुकूमत। बहुत शुक्रिया। PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मुकाबले जारी हैं, अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर कौमी रैंकिंग टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। मुल्क भर से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं बड़ी तादाद में। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के डायरेक्टर मुस्तफ़ा कमाल कुरैशी साहब, हमसे जानेंगे मुस्तफ़ा साहब किस तरह देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको, मुल्क भर से खिलाड़ी बच्चे यहाँ पर जमा हैं। ये जी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सिंध के अंदर ख़ास तौर पे स्क्वाश को तरक्की देनी है, उसके हिसाब से तो हमें पिछले 6-8 महीने के अंदर बल्कि 1 साल से जो रिस्पांस मिल रहा है वो देख के बड़ी खुशी हो रही है। और ख़ास तौर पे लड़कियां जो प्लेयर्स हैं हमारी वो सिंध की वो डेवलप हो रही हैं। और जो स्क्वाश गेम में जो इम्प्रूवमेंट सिंध के अंदर हमें नज़र आ रही है वो आपको परफॉर्मेंस नेशनल के अंदर जाके नज़र आती है हमारी बच्चियों की। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जी सिंध के अंदर जो इतने अरसे से स्क्वाश ज़रा थोड़ी कमज़ोर थी, हमने कहा जी इसको डेवलप किया जाए। एंड जब आप एक बच्ची को या बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और एक फैसिलिटी अच्छी होती है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। और हमारी नेशनल मेरिट जो है उसके हिसाब से तो जो टेक्निक्स हैं अगर हमारे बच्चे सीख लेते हैं तो दे विल गो प्लेसेस। लोग इतने मौके दे रहे हैं, खिलाड़ी मैचेस से सीख रहे हैं, तो समझ रहे हैं नया टैलेंट भी सामने आ रहा है बहुत। ये आप देखें कि पिछले 2 साल के अंदर सारा नया टैलेंट ही सामने आया है। और ख़ास तौर पे सिंध का टैलेंट जो है, क्योंकि वो नॉर्मली आपको ऊपर नेशनल के अंदर पंजाब और KPK के बच्चे ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि वो करीब हैं और वो उनके लिए फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है। सो बट इस दफ़ा बल्कि पिछले 1 साल से आप देखें कि सिंध के बच्चे भी नेशनल के अंदर आपको बहुत नज़र आते हैं। शुक्रिया। सुना आपने कि मुस्तफ़ा कमाल कुरैशी साहब बताया था कोशिश यही कि ज़्यादा मौक़े फराहम करें और इस मौक़े का नौजवान बच्चे जो कराची के निजी होटल में एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। सबा परवेज़ अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, ERI एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम निजी होटल में जो है वो यहाँ पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे दीगर शहरों से और इंस्टीट्यूट से असातिज़ा का जो है वो यहाँ पर शिरकत की है। उन्होंने डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पर इंस्टीट्यूट के, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जो आज की कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद क्या है? मैं फसीउर रहमान डायरेक्टर एडमिन हूँ। ERI एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर ट्रेनिंग का इदारा है। हमारी ERI की 3rd फ्यूचरिस्टिक कॉन्फ्रेंस है। ये फ्यूचर से मुताल्लिक़ टीचर्स को अवेयरनेस देना उनके, ताकि वो बच्चों को बेहतर एजुकेशन फराहम कर सकें जो भी है। और उस हवाले से ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जिसका कल आज का दिन जो है वो हमने कई सेशन 3 सेशन रखे थे, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पैनलिस्ट क्वेश्चन आर भी करेंगे टीचर से। और इस वक्त तकरीबन 300 टीचर यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ स्कूलों के। तो ये इस हवाले से कॉन्फ्रेंस है। और कल का दिन हमारा जो है वो 33 सेशन होंगे जो मुख्तलिफ क्लासें होंगी, सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर वो होगा सिलसिला ना, जो कि सखी हसन चौरंगी पर कैंपस है, टिम्स इंस्पिरेशन मॉडल स्कूल, उसमें होगा। जी अच्छा, मुझे बताएं कि किन किन शहरों से जो है वो असातिज़ा ने शिरकत की है इस कॉन्फ्रेंस? ये तो सिर्फ कराची के ही हैं इस वक्त, तो किसी और शहर से आना मुमकिन नहीं था क्योंकि इस वक्त एनुअल एग्ज़ाम के करीब हैं, 2 महीने का टाइम है। उस हवाले से तो हमने हर साल ये हम करते हैं। हमारी 3rd ERI कॉन्फ्रेंस है जो पूरे कराची लेवल पर आई है। जी, कराची के लेवल। 3rd ईयर जो है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस है, पहला रोज़ है। कल जो है वो यहाँ पर इसकी इख्तिताम तक तकरीब होगी। इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि ये ERI इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गवर्नर हाउस में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। मजीद अपडेट करेंगे सईद ज़ुबैर राशिद।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 11वीं सालाना तकसीम इस्नाद जो है मुनक्किद की गई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसरी ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर समरीन हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात भी कराते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जब से आपने यूनिवर्सिटी का कलमदान संभाला, यकीनन यूनिवर्सिटी जो है अच्छे से अच्छी की राह में गामजन दिखाई देती है। मुझे बताइएगा कितने फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को डिग्रीज जो है तफवीज़ की गई है? एक्चुअली ग्रेजुएट्स, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बट जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है वो 313 है, बट आज जो अटेंडेंस थी वो 289 थी। और बाकी यूनिवर्सिटी के लिए आप दुआ करें कि हम और मज़ीद अच्छे काम कर सकें। गवर्नर हाउस का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त रहा और बड़ा ऑर्गेनाइज था, बच्चों ने बहुत डिसिप्लिन शो किया एंड दे केप्ट द इंस्टीट्यूशंस रिस्पेक्ट। तो आई एम सो हैप्पी फॉर द ग्रेजुएट्स ऑल्सो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देयर पेरेंट्स फॉर देयर पेशेंस एंड यू नो फॉर देयर टाइमली अटेंडेंस एंड मीडिया ऑब्वियसली दे वर ऑल टुगेदर विद अस टू यू नो एक्चुअली प्रोजेक्ट आर पॉजिटिव थिंग्स। यकीनन पॉजिटिव थिंग। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल कितने दिए गए, और दूसरी बात तलबा व तालिबात के लिए कॉन्वोकेशन का दिन तो बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी आपके क्या तासुरात हैं? ऑल टुगेदर हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके सिल्वर मेडल्स होते हैं, और इस बार हमने सिल्वर एक्चुअली उसमें डाला है, और गोल्ड मेडल्स में भी हमने यही किया। 5 गोल्ड मेडल्स थे जो फैकल्टी टॉप होते हैं, और 1 यूनिवर्सिटी टॉप का गोल्ड मेडल था, और जो 10 जो हैं हमारे सिल्वर मेडल्स थे, बाकी ब्रॉन्ज मेडल थे तकरीबन 25। और मेरे लिए एज अ वाइस चांसलर ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मेरा पहला कॉन्वोकेशन था दाऊद यूनिवर्सिटी का, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी दैट हाउ आई डिलीवर एंड परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कॉन्वोकेशंस दे हैड। तो क्या कि एक आखिरी मैसेज तालिब इल्मों के नाम देना चाहेंगी? तालिब इल्मों के नाम गवर्नर साहब ने बहुत सारे पैगाम दिए और बहुत अच्छे दिए, हुसैन दाऊद साहब ने बहुत अच्छी टिप्स दी। मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश ये है कि जो कुछ उन्होंने सुना और जो कुछ इन बड़ी हस्तियों से उन्होंने सीखा उसको आगे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर समरीन हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और फारिगुल तहसील। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची चिड़ियाघर में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की आमद है, तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। कराची के चिड़ियाघर में, जहां पर रोजाना के बुनियाद पे हम देखते हैं कि फैमिलीज आ रही होती है, लेकिन आज स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर हल्ला गुल्ला करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों ने, जो है वो रेलगाड़ी का सफर जो है यहाँ पर किया, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो जानवर हैं उनको देखकर जो है वो उनसे उनके मुतालिक जो मालूमात हैं वो हासिल की। मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पर इस जानिब दिखाएंगे कि बच्चे खासा हल्ला गुल्ला जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, और इनको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जंपिंग है उसके अंदर भी जो है इन्होंने जो है उछल कूद बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पर कुछ बच्चे, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ के, और कौन कौन सी जगह पर आपने विजिट किया है? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने पीकॉक देखा, बहुत सारे एनिमल्स देखे। अच्छा, आपने क्या देखा? सर, हमने लायंस देखे, टाइगर्स देखे, व्हाइट टाइगर देखा, ब्लू पीकॉक देखा, सब एनिमल्स देखे। नॉलेज हुई यहाँ? जी सर, कि बहुत से जानवरों का ये पता चला कि वो क्या खाते हैं, जैसे ब्लू पीकॉक बीज और अनाज खाता है। ब्लू पीकॉक बीज और अनार खाते हैं। यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही होगी पूरी रात इन बच्चों को, तो आप भी तैयारियों में? बिल्कुल जी, खेलता कूदता माशा हमारे अक्कासी करने के लिए आज हम बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, ताकि बच्चे बहुत सी चीज़ों के बारे में जान सकें, स्पेशली एनिमल्स के बारे में। हम ज़ू की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मैनेज किया, हमें बहुत से चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने बच्चों को बताया, और बच्चों ने बहुत खूब इंजॉय किया इसका। जी बिल्कुल, ये लायंस एरिया का एक स्कूल है जहाँ से बच्चे जो है यहाँ पर आए। इसी तरीके से दीगर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ से भी जो है कराची ज़ू का विजिट करने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो